Dr. Purnima Prabhu. Welcome, a warm welcome from Sopan team. We are really glad that you are with us here. So I would like to, she has done so much good work in her field. I would like to list some of her achievements here. She has worked in pediatric department of KM and Wadia Hospital, pediatric nutrition therapist at PD Hinduja Hospital for 23 years, in practice as a family physician for 40 years in Mumbai, trained as an observer in therapeutic nutrition and at Francis Stern Nutrition Center and New England Medical Center, Boston, Brain Institute, Miami, etc. in USA, core committee member and writer of group education module on nutrition and office practice and nutrition education of IAP, including NEPU. Invited speaker to the regional and national conference. Specialized interest in therapeutic diets like ketogenic diet for epilepsy, dietary management of IEMS, and diets for autism and ADHD, etc. Ma'am, we are so glad to have you here. We are really happy, and you can take the session ahead from here. Ma'am, you have to unmute. Ma'am, one request, mix of Hindi and English, please, because quite a few of our parents are more comfortable in Hindi. So please, Hindi and English mixture. Yeah, thank you. We can't hear you, ma'am. Now we can. Am I audible? Yes, perfect. So today we are talking on ketogenic diet or treatment for epilepsy. I'll try to mix Hindi as you all have requested with English, because I think some parents may be more comfortable in Hindi. And thank you, Ruchi, for a good introduction. And thank you, everybody, for inviting me to share our experiences on ketogenic diet. As you know, it is an evolving science kind of thing, and we keep changing. We've learned over the time, and I'd like to share some of my experiences, how we've changed from the start when we did it in 1997 and how the things have changed for ketogenic diet. तो पहले हम कैसे ट्रीटमेंट कीटोजेनिक का करते थे, उससे थोड़ा अभी बदल गया है। और जो पैंडेमिक, कोविड का पैंडेमिक आया, उसमें बहुत से बदलाव आए हैं फोर्सफुली, मीन्स वी डिडंट वांट टू डू इट बट वी हैड टू डू इट. सो on the way we have learned because of pandemic, so there are good things about pandemic too. Okay. So what is an epileptic seizure? It is transient excessive electrical discharge of nerve cells. All of you know, मैंने sudden जब electrical discharge जो ज़्यादा आता है, normally also electrical discharge रहता है, वो बहुत ज़्यादा आने से हमको epileptic fit आती है, या मिर्गी बोलते हैं, नहीं तो उसको खींच बोलते हैं. और क्लासिफिकेशन है पार्शियल जनरलाइज एंड सेकेंडरी जनरलाइज सीजर्स. इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जनरलाइज सीजर्स ज्यादा करके जो है वो गोलियों से ठीक हो जाते हैं, और बाकी के जो एकदम छोटे मायोक्लोनिक जर्क्स वगैरह जो रहते हैं वो थोड़े मेडिसिन से जल्दी ठीक नहीं होते, और उनको हमको दूसरी तरह की ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है. तो ये सब एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स है, मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहती. जस्ट फर्स्ट लाइन ड्रग्स है. मैंने पहले थोड़े टेग्रेटॉल, एपिवल, ऐसे सब ड्रग्स दिए जाते हैं. फिनोबार्बिटोन 1 बरस के नीचे बच्चे को गार्डेनल करके गोली दी जाती है. और फिर सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग्स, इसके बाद में क्लोबाजाम, विगाबैट्रिन, लेमोट्रिजिन, टोपिरामेट एक्सेट्रा, ये सब सेकेंड लाइन ड्रग्स है. अगर ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जितने हम लोग ड्रग्स ज्यादा ऐड करते हैं तो एफिकेसी आप देखेंगे तो एक ड्रग, एक मेडिसिन से 50% है, वो 2 से शायद 60% हो जाती है, 60%. 3 ड्रग से मे बी 70% होती है. लेकिन आप ये
जो देखेंगे ये ग्राफ जो है, तो जितने ड्रग्स उतने साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं। तो एफिकेसी के हिसाब से उतना फायदा नहीं होता है ज्यादा ड्रग्स देने से। और मैं खुद MBBS डॉक्टर हूं, तो मैं आई एम नॉट अगेंस्ट मेडिसिन, लेकिन ये हम लोग मानते हैं कि सभी मेडिसिन का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है। तो जब हम लोगों को ज्यादा दवाई देने की जरूरत पड़ती है तो उसे हम लोग इंट्रैक्टेबल एपिलेप्सी बोलते हैं। सो सीजर्स विच आर नॉट कंट्रोल्ड बाय सूटेबल एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, माने जो उसको हुआ है उसका सही ड्रग चुनना चाहिए, सही राइट डोज में देना चाहिए, और एटलीस्ट सही पीरियड 4 to 6 weeks, sometimes 3 months also you should try, give a full trial to the medicine। and फिर भी कंट्रोल नहीं होता है तो हमारे पास थोड़ी और चीजें हैं। तो एक है वेगल नर्व स्टिमुलेशन, VNS, छोटा सर्जरी करके करते हैं। दूसरी एपिलेप्सी सर्जरी है, इनके बारे में मैं नहीं बात करना चाहती हूँ। आज मैं कीटोजेनिक डाइट के लिए बात करूंगी। तो वेगल नर्व स्टिमुलेशन से भी 50% रिडक्शन सीजर्स होते हैं इन 50% ऑफ केसेस, लेकिन ये हाई टेक्नोलॉजी लगता है, एक्सपेंसिव है, एंड इट इज नॉट इजीली अवेलेबल एवरीवेयर। एपिलेप्सी सर्जरी इन गुड सिलेक्टेड केसेस अच्छा रिजल्ट देती है, रिक्वायर्स अ बिग हॉस्पिटल सेटअप विथ हाईटेक इक्विपमेंट, एक्सपेंसिव है, एंड रिस्क ऑफ न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट भी है। कोई बच्चों को ये सर्जरी नहीं की जा सकती है। तो दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन अपने पास कीटोजेनिक डाइट है। तो आजकल हम लोग वो पहला करते हैं, जब भी मेडिसिन रिजल्ट नहीं देती तो हम लोग कीटोजेनिक डाइट को पहले जाते हैं। क्योंकि इसके कंपेरेबल रिजल्ट्स है, एज गुड एज दीज अदर 2 मेथड्स। Risk of serious side effects is low, it is cheap, and high technology is not required। तो और इंडिया में और भी इजी हो जाता है, क्योंकि हम लोग नॉर्मली जो डाइट लेते हैं उसमें थोड़ा सा बदलाव करके ये किया जा सकता है। अब्रॉड ऑल्सो पीपल आर हैविंग लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल टू डू द डाइट, बट व्हेन here also the things are coming, when both parents are working and all, we are finding difficulty in getting the ketogenic diet prepared at home। So what can we hope to achieve with ketogenic diet? एक तो कंट्रोल सीजर्स हो जाता है। अभी सीजर कंट्रोल हो जाएंगे तो हम लोग दवाइयां कम कर सकते हैं। दवाइयां कम करेंगे माने उसकी टॉक्सिसिटी भी कम हो जाएगी, इंक्रीज अलर्टनेस हो जाएगा, क्योंकि सीजर्स हम लोग कंट्रोल किए तो उसका अलर्टनेस बढ़ जाएगा, और मेडिसिन भी रिड्यूस करके अलर्टनेस बढ़ जाएगा, और ये दोनों कारण कॉग्निशन इंप्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट होने का चांस है, जो दवाइयों में डेवलपमेंट का चांस कम है। तो शॉर्ट में कीटोजेनिक डाइट माने क्या है? ये उपास का टाइप का डाइट है, माने फास्टिंग डाइट है, और ये आयुर्वेदा में 1922 में डिस्क्राइब किया था। लेकिन जैसे कि यहाँ सब डिस्क्राइब होता है, लेकिन बराबर सही साइंटिफिक ढंग से अमेरिका में उसका रिसर्च किया गया, एंड बाद में वो कीटोजेनिक डाइट ऐसा डॉक्टर फ्रीमन ने जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल से उन्होंने एस्टेब्लिश किया। तो अभी वो कौन से कारण कीटोजेनिक डाइट वर्क होता है? एक तो कीटोसिस होता है, एसिडोसिस होता है, थोड़ा सा डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ये फिर क्या है ये कीटोसिस माने क्या है? जब हम लोग फूड खाते हैं तो वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट ऐसे होता है। तो फूड कार्बोहाइड्रेट होके उसका ग्लूकोज बनके एनर्जी होता है, एंड प्रोटीन अगेन अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, एंड दिस वी कॉल इट अ क्रेब साइकिल। फैट भी कीटोन्स हो सकते हैं फैट के डायरेक्टली। तो अभी समझो फास्टिंग में क्या होता है, हम लोग खाना नहीं खाते हैं, तो when you are not eating food, there is no carbohydrate available, प्रोटीन फिर भी रहेगा थोड़ा बहुत, तो वो अमाइनो एसिड होके ग्लूकोज होके एनर्जी देगा, और हम लोग फोर्स होते हैं कि वी विल बर्न फैट, माने अपना जो चर्बी है वो हम लोग जला के उससे कीटोन्स प्रोड्यूस करते हैं, और देन एनर्जी बन जाती है। तो नॉर्मल जो क्रेब साइकिल है वो छोड़ के हम लोग फैट से अपना एनर्जी निकालेंगे।
तो फैट्स में कीटोन्स होते हैं, वो कीटोन्स है एसिटो एसिटिक एसिड एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड। तो ये कैसे, लेकिन ये करने से कैसे ठीक हो जाती है माने एपिलेप्सी? तो ये है अल्टरनेटिव फ्यूल है, माने ये जैसे दूसरा ईंधन है अपने शरीर के लिए। तो जो ग्लूकोज की हाइपोमेटाबॉलिज्म न्यूरॉन्स में, जो अपने ब्रेन में जो न्यूरॉन्स रहते हैं उसमें ग्लूकोज हाइपोमेटाबॉलिज्म एक मेन कारण है मिर्गी आने का। तो वो ये अल्टरनेटिव फ्यूल देता है, पर्टिकुलरली GLUT1 डेफिशिएंसी जो सिंड्रोम है जिसमें ग्लूकोज नहीं पहुंच पाता, उसमें वो कीटोन्स करके पहुंच पाता है। देन नर्व सेल्स जो है वो सिनेप्टिक फंक्शन वो इम्प्रूव करती है, माइटोकॉन्ड्रिया की एक्टिविटी इम्प्रूव करती है, एंड जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो सेल्स पे आता है वो कम होके अपना इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाता है। सम प्रोटीन्स विच आर देयर लाइक टाउ, एमिलोइड बी एक्सेट्रा, वो भी कम हो जाते हैं। ये एमिलोइड बी अल्जाइमर्स के में बहुत मायने रखता है, तो इसी के लिए कीटोजेनिक का प्रयोग अभी अल्जाइमर्स के लिए भी चालू है। तो so it regulates the cellular signaling, regulates the translational protein synthesis, has an anti-inflammatory effect, and it may have a role in epigenetics. So these are the new theories for action of beta hydroxybutyric acid, which is the alternate source, which is the ketone. और कीटोन के कारण उसका नाम कीटोजेनिक डाइट दिया गया है। तो हम लोग सिलेक्ट कैसे करते हैं? इंट्रैक्टेबल एपिलेप्सी केसेस मैंने बोल दिया आपको, प्रिफरेबली केसेस विदाउट मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी, माने जो कोई बीमारियां ऐसी होती है जो कीटोन्स प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते, वैसी बीमारियों को हम नहीं ले सकते, इनबॉर्न एरर्स वगैरह को। देन एपिलेप्सी सर्जरी, अगर आपको पक्का पता है कि एक ही साइड में कुछ ब्रेन में छोटा सा ये है, वो निकाल के अगर ठीक होने वाली सर्जरी है तो ठीक है। बट व्हेन यू आर नॉट नोइंग एपिलेप्सी सर्जरी वेयर इट विल वर्क और नॉट, तो पहले सर्जरी करके बाद में डाइट देने में कोई मतलब नहीं है। तो वी से कि फर्स्ट यू गो ऑन कीटोजेनिक डाइट ट्रायल एंड देन इफ इट डजंट वर्क you can go for epilepsy surgery. Many a times the diet only works, so we don't have to worry about it. And motivated parents, सबसे ज्यादा जरूरी है कि पेरेंट्स को इंटरेस्ट होना चाहिए, उनको समझना चाहिए। और I say that it is not important that patient should be highly educated or something. उनको मन होना चाहिए, that means commitment should be there. Committed patients I have had even in lower class, even uneducated class, they are doing it fine. And other things KD has been used, अभी weight loss with traditional methods जब भी fail होते हैं तभी, then PCOS जो लेडीज यंग लेडीज की रहती है, एंड डायबिटीज मेलिटस, इसके लिए भी यूज किया जा रहा है कीटोजेनिक। तो पहले कीटोजेनिक डाइट में हम लोग सब उसके लेवल्स कर देते हैं। ये कीटोजेनिक डाइट अपने आप करने वाली चीज नहीं, कोई तो डॉक्टर को, डाइटिशियन को आप समझ के फिर करना, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो बेसलाइन EEG चाहिए तो आपके न्यूरोलॉजिस्ट ये सब करेंगे, साइकोमेट्रिक करेंगे, फंडस एग्जामिनेशन करेंगे, एंड फिर इंडक्शन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कीटोसिस करते हैं। तो अभी पहले हम लोग सब पेशेंट को एडमिट करते थे, आई एम टॉकिंग अबाउट 97। तो हम लोग उनको स्टार्व करते थे, 2 दिन वगैरह स्टार्व करते थे, फिर कीटोन्स आ जाते थे। तो उसमें हाइपोग्लाइसीमिया माने लो ब्लड शुगर वगैरह होता था, एंड इट वाज लिटिल डिफिकल्ट, बट वी डिड नॉट नो हाउ टू डू दैट टाइम। ऑल ओवर वर्ल्ड पीपल वर स्टार्विंग। तो अभी बाद में मालूम पड़ा कि इतना स्टार्वेशन की कोई जरूरत नहीं, हम लोग रात में एडमिट करते हैं, सुबह चालू करते हैं, एंड वी डोंट हैव नीड टू गेट दैट कीटोन्स, क्योंकि एक बार कीटोन्स आने के बाद कीटोन्स बढ़ते रहते हैं 3 हफ्ते तक। तो इन पेशेंट भी हम लोग एकदम मिनिमम स्टार्वेशन करते हैं, उससे जरा जल्दी कीटोसिस आता है तो हॉस्पिटल स्टे कम हो जाता है। और अभी कोविड में कोई एडमिट करने को ही तैयार नहीं था, तो वी हैव डन विदाउट एडमिशन। बट किसको एडमिट करना ही पड़ता है अंडर 1 ईयर, जब हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस ज्यादा होते हैं कि आउट पेशेंट रहेगा तो वो कहाँ रहेगा, तो उसको भी एडमिट करते हैं, एंड नहीं तो आउट पेशेंट बेसिस पे करते हैं। यहाँ
ग्रेजुअल माने स्लोली कीटोसिस ओवर कपल ऑफ वीक्स लाते हैं, उसका भी रिजल्ट उतना ही आता है। बट एकदम छोटे बच्चों को जिनका शुगर ऊपर नीचे ज्यादा होता है, बहुत सारी बीमारियां हैं, ऐसे बच्चों को हम लोग एडमिट करना पसंद करते हैं। एंड इसमें क्या आउट पेशेंट में क्या करते हैं हम लोग, नो स्टार्वेशन माने उसको भूखा नहीं डालते, कार्बोहाइड्रेट वॉश आउट करते हैं एंड बाद में कीटोजेनिक डाइट देते हैं। एंड एडमिट रहेंगे तो हम लोग ग्लूकोज घड़ी घड़ी टेस्ट करते हैं, because we need to know whether he's going down, because here when you admit patient you give a very high ratio. I'll come to it in a little bit. इन पेशेंट में बिकॉज हम लोग एकदम हायर रेशियो देते हैं, पेशेंट कैन हैव वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन और लो शुगर होने के चांस है, एसिडिसिस होता है कभी कभी, बट ये सब हम लोग ने ज्यादा देखा नहीं है क्योंकि हम लोग इतना ज्यादा अभी स्टार्वेशन नहीं करते हैं। एंड फिर कीटोजेनिक डाइट जो कैलकुलेटेड रेशियो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी जितना छोटा बच्चा उतना लोअर रेशियो, माने उसका फैट उतना कम। अभी ये रेशियो क्या है, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट का रेशियो है, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन का रेशियो है। एंड जब भी एडमिट करते हो तब आप ये यूज करते हो टू ट्रेन द मदर टू प्रिपेयर डाइट, टू मॉनिटर द कीटोसिस। सो फर्स्ट बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन हमने करा लिए, फिर कार्बोहाइड्रेट डाइट आउट पेशेंट में करना है तो कार्बोहाइड्रेट वॉश आउट डाइट फॉर फर्स्ट वीक। माने इसमें क्या करते हैं हम लोग, ग्लूकोज है, मध है, शहद है, गुड़, ये सब बंद करते हैं, पोटैटो, बनाना, ऐसी चीजें जो कार्बोहाइड्रेट ही बंद कर देते हैं, बिस्किट, केक्स वगैरह बंद कर देते हैं। और फिर सोया का आइटम्स, नॉन वेजिटेरियन आइटम्स, एग, चिकन, मटन, क्रीम है, थोड़ा सा दूध है, देन ड्राई फ्रूट्स, ऐसी चीजें खाने को बोलते हैं। और फिर बाद में ग्रेजुअल रिडक्शन, फिर धीरे धीरे रोटी कम कर दी, राइस कम कर दिया, ऐसे करके हम लोग जब तक अपना कीटोन्स यूरिन में तपास के नहीं आता तब तक हम लोग उसका फैट बढ़ाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कम करते हैं। सो दिस डिग्री of ketosis can be adjusted by varying the ratio of fats to carbohydrates in the diet. High ketosis would be achieved by ratio of 5:1 and lower ketosis by 4:1, 3:1, 1:1, 2:1, 1:1, like that. तो अभी पहले क्या, टोटल कैलोरीज विल बी 75%, माने जितना जो बच्चे को खाना है उतने के 75 खाना जरूरी है, वो हम लोग बोलते हैं रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। तो उसके एज के हिसाब से, जो आइडियल वेट के हिसाब से जो डाइट कैलकुलेट करते हैं उसका 3/4 हिस्सा कैलोरीज लेते हैं। फिर रेशो डिसाइड करते हैं, उसको बोलते हैं फैट टू कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन। तो रेशो डिपेंड्स ऑन एज, स्मॉलर चिल्ड्रन रिक्वायर लोअर रेशो एंड बिगर चिल्ड्रन रिक्वायर हायर रेशो। तो समझ लीजिए एक आरडीए रिक्वायरमेंट फॉर एक 3 ईयर ओल्ड है और उसका वजन 13 किलो है, तो उसका 90 to 100 पर कैलोरी, मैंने इजी कैलकुलेशन जो इजीली विदाउट कैलकुलेटर हो सकेगा वैसा लिया है। तो 1300 का 75% विल बिकम 980 कैलोरीज। अभी 4:1 रेशो हम लोग देखेंगे, तो 4 क्या है, फैट का है, 4 into 9 36 एंड 1 into 4 is 4, तो 40 कैलोरीज पर यूनिट हो गया। तो हम लोग को डाइटरी यूनिट मिल गया 24.5। तो फैट इसके चौगुना रहेगा बिकॉज 4:1 रेशियो है, तो 98 ग्राम्स ऑफ फैट। प्रोटीन उसके एज के हिसाब से एटलीस्ट 1 ग्राम पर किलोग्राम, और जो रह जाता है कार्बोहाइड्रेट वो DU माइनस प्रोटीन माने 10.5। लेकिन ये आप लोगों को कि अभी आई डोंट नो, मे बी पैरामेडिकल पीपल आर अटेंडिंग, डॉक्टर्स आर अटेंडिंग, सो आई हैव टेकन दिस। बट हम लोग जब पेशेंट को ये देते हैं तो वी डोंट गिव देम दीज कैलकुलेशंस, हम उनको खाना कितना देता है बताते हैं। तो यूजुअली 4 मील्स देते हैं, बच्चों को, छोटे बच्चों को 6 मील्स देना है तो भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से 3:1, 2:1 रेशो किया जा सकता है। और फिर मेंटेनेंस स्टेज में क्या करना है, जब भी पेशेंट को बुलाते हैं हम लोग, तो कीटोसिस बराबर हो रहा है कि नहीं। तो वो कीटोसिस कैसे चेक करने का, यूरिन में कीटोन्स की स्ट्रिप आती है, वो डुबा के 40 सेकंड के बाद देख लेते हैं, कलर आता है
वो मैच करके हम लोग देखेंगे कि ये कीटोन्स बराबर है कि नहीं। तो उसका डार्क पर्पल कलर आने से कीटोन्स अचीव हो गए। तो लुक फॉर डॉक्यूमेंट इम्प्रूवमेंट इन सीजर कंट्रोल, मैंने आपको पूछना है कि सीजर में कोई तब्दीली आ गई कि नहीं, उसको कॉग्निशन माने अलर्टनेस बढ़ गया कि नहीं। फिर 3 महीने 6 महीने ऐसे ही चलेगा तो हम लोग धीरे धीरे न्यूरोलॉजिस्ट के पास से उनके एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स जो मिर्गी की दवाइयां हैं वो एक एक धीरे धीरे कम करते हैं। 1-2 बरस के बाद में हम लोग डाइट में फैट घटा देंगे, कार्बोहाइड्रेट धीरे धीरे बढ़ा देंगे। और दूसरा एक पूछना है कि कोई कॉम्प्लिकेशन है क्या इसमें, क्योंकि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस ये वेरी कॉमन है जब हम लोग ट्यूब फीडिंग, कोई सेरेब्रल पॉलिसी के बच्चे विद मिर्गी रहते हैं तो उनको ट्यूब फीडिंग रहता है, तो बाकी का कुछ उसमें है ही नहीं। कभी मिक्स ये करके मिल्क एंड सोया मिल्क ऐसे सब देने से सॉल्ट डाला नहीं जाता, तो इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस हो सकती है। कभी कभी यूरिक एसिड के स्टोन्स जैसे तैयार हो सकते हैं, तो हर महीने हम लोग यूरिन टेस्ट करा लेते हैं। तो कभी कभी कोई दवाइयां जो टोपिरामेट जैसी दवाइयां हैं उसमें भी यूरिक एसिड क्रिस्टल है, प्लस उसके ऊपर क्योंकि हम लोग जब भी स्टार्ट करते हैं डाइट वी डू नॉट स्टॉप द एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन, सभी सीजर की दवाई चालू रहती है और उसके बाद में हम लोग धीरे धीरे घटाते हैं। तो समझो टोपिरामेट चालू है तो कीटोजेनिक डाइट से आपको फर्क आ गया तो पहले हम लोग टोपिरामेट हटा देंगे। तो इसके लिए ये सब जानना जरूरी है कि मेडिसिन कौन से चालू है। विटामिन हम लोग सप्लीमेंट करते हैं डाइट में, क्योंकि विटामिन B12 डेफिशिएंसी आंख में प्रॉब्लम कर सकती है। तो आंख का जांच 1 बरस में 1 बार तो किया जाता है, स्टार्टिंग में तो किया ही जाता है। और कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट भी हम लोग देते हैं। आयरन, कभी हीमोग्लोबिन कम रहेगा तो आयरन और बी कॉम्प्लेक्स मेडिसिन देते हैं, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट इतना कम है कि सब तरीके के विटामिन आपको मिलना असंभव है कीटोजेनिक डाइट में। फिर लिवर डिसफंक्शन भी हो सकता है, तो ये सब चीजें ध्यान में रख के आपको करनी पड़ेगी। तो हम लोगों ने अपने मैंने हिंदुजा में हम लोग इतने साल से काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या कॉमन देखा, अर्ली में डिहाइड्रेशन माने गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि सडनली आप इतना कार्बोहाइड्रेट खाते हो ऑलमोस्ट 50% का एकदम सडनली 7 से 10% हो जाता है, तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्फंक्शंस आर मोस्ट कॉमन। फिर इन्फेक्शन कभी कभी होते हैं, अर्ली स्टेजेस में ये कॉमन है। सम यूरिक एसिड सिम्टम्स आर देयर, सिम्टोमेटिक हाइपोग्लाइसीमिया बहुत कम देखा है, कभी कभी प्रोटीन कम हो जाता है, और कोलेस्ट्रॉल के ट्राइग्लिसराइड्स ये बढ़ने का चांस है, थोड़ा सा बढ़ना माने इट इज कॉमन बिकॉज वी आर इंक्रीजिंग द फैट, सो वी एक्सेप्ट इट, but we have to know the baseline and it should not go too much above, then we will reduce little bit fat. Late onset में भी gastrointestinal, कभी कभी constipation में भी देखा है, electrolyte disturbances I have seen, renal stones we have seen, but not very common because we get urine test done quite regularly. कभी कभी लेकिन patient follow up नहीं करता है बाहर गांव का, then we have problem. And early and late onset, mainly the GI symptoms are common. Hypertriglyceridemia, it is expected, वो common है, लेकिन जैसे आप आगे जाते हैं वैसे वो hypertriglyceridemia settle हो जाता है। तो अभी ये कोई कीटोजेनिक डाइट, मुझे बोलने के लिए कीटोजेनिक डाइट बोला है, लेकिन there are some other diets also which act just like कीटोजेनिक डाइट। तो वो है MCT डाइट, जिसमें मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड डाइट बोला जाता है। इसमें जरा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्कम्फर्ट्स आर मोर, बट सम पीपल हु कैन नॉट डू द ketogenic diet fully, we add little bit time, so it's a combination of ketogenic and medium chain triglyceride. So ये ऑयल मिलता है, ये हम लोग डाल के पाउडर भी मिलती है, तो उसका डाइट होता है। इसमें कभी कभी
पेट फूलने का चांस ज्यादा होता है, डायरिया ज्यादा होता है। तो कभी कोई बच्चे रहते हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, उनको हम लोग MCT ऐड कर देते हैं कीटोजेनिक डाइट में, तो दैट प्रॉब्लम गेट्स सॉल्व। And this will be this MCT if we add it in the fat portion. फिर modified Atkins diet, अभी मैं बोल रही थी कि बिकॉज ऑफ पैंडेमिक, कोविड का जो पैंडेमिक आया, उसमें मॉडिफाइड एटकिंस डाइट हम लोग ने ज्यादा किया है। क्यों? क्योंकि पेशेंट को इतना दूर से, बाहर गांव से जो पेशेंट आते थे, उनको कीटोजेनिक डाइट बड़े बच्चों को करना बहुत मुश्किल था। तो मॉडिफाइड एटकिंस डाइट, इसमें क्या थोड़ी बहुत रोटी, थोड़ा मैंने नॉर्मल जैसा डाइट हो जाता है, और उसमें एवरी टाइम यू डोंट हैव टू वेट। So when you are remotely controlling this thing, we have used modified Atkins. लेकिन modified Atkins हम लोग बहुत छोटे बच्चों को नहीं करते हैं। और कोई एडोलेसेंट जो रहते हैं, माने 14, 15, 16 साल के बच्चे, वो कीटोजेनिक डाइट इजीली नहीं करते क्योंकि उनको सब खाने की आदत अभी हो गई है, तो उनको मॉडिफाइड एटकिंस डाइट अच्छा पड़ता है। तो अभी क्या फर्क है कीटोजेनिक डाइट और मॉडिफाइड एटकिंस डाइट? तो नॉर्मली कीटोजेनिक डाइट हर टाइम सेम फैट, सेम कार्बोहाइड्रेट, सेम प्रोटीन रहता है, वेरएज इसमें पूरे दिन का फैट और एडजस्ट उतना किया जाता है। तो इसमें जो मॉडिफाइड एटकिंस हर टाइम कार्बोहाइड्रेट उतना ही जाएगा, ऐसी गारंटी नहीं है, क्योंकि हम लोग दिन भर का डाइट देते हैं कि इतना 100 ग्राम समझो सोया आटा खाओ, थोड़ा व्हीट उसमें ऐड करो, एग खाओ, एग बुर्जी खाओ, 2-3 अंडे खाओ, फिर वेजिटेरियन रहेगा तो पनीर, चीज, ऐसी चीजें खाने को बोलते हैं। Fruits and vegetables are allowed in both ketogenic as well as modified Atkins, but high carbohydrate fruits like banana, chiku are not allowed. Potato, etc. are not allowed in the vegetable section. Sweet potato, etc. बाकी सब भाजियां और तरकारियां, फ्रूट्स ऐसे अलाउड है। और तीसरा जो डाइट है वो लो ग्लाइसेमिक डाइट है, इसमें और भी ज्यादा कार्बोहाइड्रेट अलाउड है। मैंने कीटोजेनिक डाइट में सबसे कम कार्बोहाइड्रेट अलाउड है। मॉडिफाइड एटकिंस मैंने समझो 10-15 ग्राम 20 तक रहता है, मॉडिफाइड एटकिंस में 20-30 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट पूरे दिन में, और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट में उससे ज्यादा रहता है। तो और आजकल नए कीटोन एस्टर्स एंड सॉल्ट्स, मैंने ऐसे दिमाग चला कि अगर कीटोन से अच्छा होता है तो कीटोन्स ही खाने को क्यों नहीं दे। तो ये हम लोग जो डाइट से करते हैं वो एंडोजिनस कीटोन्स है, मैंने हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, तो वो ज्यादा टाइम तक टिकते हैं। ये जब बाहर से जो हम लोग देते हैं उसका रिजल्ट उतना नहीं आएगा, लेकिन कभी कभी वी कैन ऐड इट, तो उस पे सब रिसर्च चल रहा है अभी। तो हम लोगों ने 97 से स्टार्ट किया, more than 500 cases, duration about 2 to 3 years, at least 3 years we do, many times they have done for 3.5. जिसको रिजल्ट आता है वो बराबर डाइट करता है, एंड एक्सेलेंट रिजल्ट्स एंड गुड इम्प्रूवमेंट। मैंने वी सी अबाउट 67% रिजल्ट है अभी जो हम लोग ने देखा है, तो 67% रिजल्ट है, और उसमें से 15% फुल्ली ठीक हो जाते हैं। मैंने 3 बरस डाइट किया, ये सब अपने फिट्स बंद हो गए, डाइट भी बंद हो गया, मेडिसिन भी सब स्टॉप हो गए। मैंने 10 बच्चे लेंगे तो 1-2 बच्चों को ऐसा अच्छा रिजल्ट आता है। बाकी के लोगों को डाइट बंद हो गया, फिट्स बंद हो गए, लेकिन मेडिसिन 4 है तो 3 चालू है, नहीं तो 2 चालू है, ऐसे बाकी 50% लोगों को आ जाता है, और बाकी 30% को कोई रिजल्ट ही नहीं आता है। तो उनको हम लोग 3 बरस डाइट नहीं करते हैं, 6 महीने में डिसाइड करते हैं कि इसको डाइट नहीं काम आ रहा है, तो वी विल स्टॉप द डाइट। कॉम्प्लिकेशन रेट वाज नॉट वेरी हाई। If we keep a good rapport with the patients, we get about complication rate from 10 to 14%. So conclusion is that it's a viable natural option for intractable epilepsy. हाल ही में मैं कहना चाहती हूँ, इवन फॉर फायर्स, माने जो फीवर के बाद में एक बहुत खराब बीमारी होती है, पेशेंट को एक दिन फीवर आ जाता है,
हाई फीवर आ जाता है, इसको फिब्राइल इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम जो बोलते हैं, तो दूसरे दिन बच्चा एकदम स्टेटस माने फिट्स के स्टेटस में जाता है और फिर कोमा में चला जाता है। ऐसे बच्चों को भी हम लोग ने, वेंटिलेटर पे गए हुए बच्चों को हम लोग ने कीटोजेनिक डाइट दिया है, और कीटोजेनिक डाइट के बाद में वो धीरे धीरे दवाइयां कम करके we get good results, means FIRES का रिजल्ट भी 30% है. So there is more research going on in all this, and we at Hinduja are doing the diet in ventilated and admitted ICU patients also. And पहले हम लोग सिर्फ बच्चों में करते थे, अभी अडल्ट में भी काफी करते हैं, बट एडल्ट में क्या होता है, you have to take care of the cardiac problem also. If they have any existing problem, it is a problem. मैंने and adults क्या already खाने को सीखे हुए होते हैं, they, so it is little more difficult. And ketogenic works better for younger children because their brain knows how to use this energy. So it requires a good motivation, meticulous attention to detail. माने एक भी चीज शुगर बिगर बिस्किट नहीं खाना चाहिए. कॉम्प्लिकेशंस वैसे फ्यू है और वेरी ग्रेटिफाइंग रिजल्ट्स, बिकॉज एक बच्चे की हम लोग जिंदगी नहीं सुधार रहे हैं, वी इम्प्रूव द फुल फैमिली का जो एटमॉस्फेयर. जो एक बच्चा मिर्गी होता है तो बच्चा स्कूल नहीं जा सकता है, तो इट्स वेरी, सो पेरेंट्स की भी जिंदगी उसी में लगी रहती है. एंड सो इट, इफ ही इम्प्रूव्स द होल फैमिली एटमॉस्फेयर इम्प्रूव्स. सो with this I stop and I can take questions as to whatever questions you need to take. Shall I stop sharing screen? Yes, ma'am. You can put down the question in the chat box or you can directly ask. That is also fine. हेलो. Yes. मैडम. Yes. मेरे बेटे का नाम है ना अथर्व खांडेकर है. उसको ना हमेशा नींद में आता है सीजर्स. हाँ. और हर एक महीने में एक बार आता है. एक महीने में एक बार? तो वो नींद हाँ. में आपको कैसे पता चलता है? मैं एक्चुअली उसको सोने के बाद मैं एक डेढ़ घंटा में खुद जागती हूँ. अच्छा, और वही टाइम आता है हर डे? हाँ, मीन्स उसको 12 से 1:30-2 बजे तक के टाइम में आता है. तो वो ड्रॉप अटैक है क्या? स्मॉल कन्वल्जन रहेंगे ना? हाँ, पर वो बीच बीच में बड़े भी आते हैं, तो वो कुछ स्प्रे दिया है, उससे वो कंट्रोल हो जाता है. तो कितने मेडिसिन चालू है आपके? अभी उसका एक लवेरा करके है 1.5 ml. नहीं, मैं न्यूरोलॉजिस्ट नहीं हूँ. आपके मेडिसिन कितने चालू है? मैंने होम्योपैथी का है, 3. हाँ, होम्योपैथी का है मेडिसिन. हाँ. जो उसको ओवरऑल सीपी के लिए है, और हाँ. उसका सीजर्स के लिए एक ही दवाई चालू है. एक ही दवाई चालू है. तो आपके न्यूरोलॉजिस्ट को पहले पूछ लीजिए आपके, और दवाई कुछ चेंज करनी है कि उसका डोज कुछ बढ़ाने का है, वैसे रहेगा तो वो पहले कराने का अच्छा है. क्योंकि महीने में एक बार आती है, तो उसके लिए आप डाइट करेंगे. और डेवलपमेंट कैसी है? डेवलपमेंट बहुत अच्छा है. हाँ, तो वो सोच लीजिए. अगर वो बोले कि और कुछ दवाई का नहीं हो सकता तो आप ट्राई कर सकते हैं. ओके. कितने साल का है आपका लड़का? अभी 8 years कंप्लीट. 8 years को. तो उसको शायद, माने वो सब चपाती वगैरह रोटी वगैरह खाता होगा ना? सब खाता है सब. हाँ, तो उसको फिर कीटोजेनिक नहीं होगा, शायद मॉडिफाइड एटकिंस करना पड़ेगा, क्योंकि वो सुनेगा नहीं वैसे. और हाँ. स्कूल भी जाएगा तो स्कूल के क्या होता है ना, फिर घर में आप कर सकोगे, फिर वहां जाके वो आएगा नहीं. तो उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा. हाँ, मैंने पहले न्यूरोलॉजिस्ट से पूछ लीजिए कि मैंने नाम नहीं लेना, लेकिन आप पहले एक बार कंसल्ट कर लो कि मैंने ऐसा अटेंड किया था सेमिनार, तो मैं करूँ कि नहीं करूँ. क्योंकि यू हैव टू सी वेदर, माने 2-3 बरस का आपका सब चेंज हो जाएगा. लेकिन कर सकते हैं. मैंने उसको, हाँ, उसको अभी पहले 1 से 7 साल तक कुछ नहीं था. अभी लास्ट फरवरी में उसको ये स्टार्ट हुआ. पहले 7 साल उसको कुछ नहीं था. हाँ,
तो वो अभी क्या टाइप की एपिलेप्सी है? कोई कोई क्या होता है ना कि दवाई करेक्ट डोज एडजस्ट करके वो ठीक हो जाएगी, तो फिर इतनी ज्यादा नहीं है ना उसको फिट्स बने, तो आपको करना है नहीं करना है वो देख लीजिए, ओके कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। देयर इज Excuse me, ma'am. हाँ या Ma'am, this is Amreen Dhanani here. मुझे Yeah. पूछना था, मेरा बेटा है ना, he is 10 years old. हाँ उसको ऑटिस्टिक फीचर्स है, मीडियोकर, ही इज नॉन वर्बल। हाँ पहले उसको फिट्स का इशू नहीं था, सिर्फ ऑटिस्टिक फीचर्स थे, कोई मेडिसिन नहीं चल रही थी, लेकिन अभी लास्ट 1 ईयर से उसको फिट्स चालू हो गए हैं, तो उसकी मेडिसिन अभी चल रही है फिट्स हाँ के लिए। तो ऐसा है कि इज डिपेंडेंट अ लॉट ऑन मेडिसिन, अगर मेडिसिन एक टाइम की भी स्किप हो जाए उसकी, तो फिर उसको फिट्स आ जाती है। हाँ तो अभी वो 10-12 इयर्स का है, तो उसके लिए कीटोडेनिक डाइट होगी या मॉडिफाइड होगी? मॉडिफाइड ही होगी, अच्छा। क्योंकि वो और पूरा हाँ खाता है ना। हाँ हम हाँ, लोग कभी वेरी कभी क्या चूजी। करते हैं ना, स्टार्ट ओल्डर चिल्ड्रन को हम लोग मॉडिफाइड एटकिंस पहले चालू करते हैं, एंड देन इफ इट डजंट गिव द, सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द कीटोसिस इज मैक्सिमम विद द कीटोजेनिक डाइट, उससे थोड़ा कम मॉडिफाइड एटकिंस में आता है। तो मॉडिफाइड एटकिंस में इजी बोल रही हूँ, लेकिन हाँ। फिर भी वो भी डिफिकल्ट है, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, बिकॉज वी टेल यू कि पूरा दिन में खाओ, तो थोड़ा मिस्टेक्स भी ज्यादा करते हैं, एंड पीपल नॉट सो सीरियस अबाउट इट। So if it happens that he is not doing it properly or something, then we shift to ketogenic diet also. That is also possible, but it is much more difficult in children who are otherwise okay, no, they don't listen. because मैं तो बोल रही ये हूँ इशू कि है, इज वेरी चूजी, हर एक चीज स्मेल करके खाना, हाँ, बट वो और हर चीज ऑटिज्म का का टेस्ट फीचर है चेक ना। करके खाने। हाँ एग्जैक्टली, हाँ, इसके लिए तो बट ऐसा है आई कि टेल यू आवर एक्सपीरियंस विथ ये जो ऑटिज्म है ना, कभी कभी सेकेंडरी टू फिट्स रहेगा, तो कीटोजेनिक डाइट और मॉडिफाइड एटकिंस कैन वर्क ऑन इट, ओके। and it is not a proven diet for all autistic children. ना एक क्वेश्चन आया है, I think Is keto strongly recommended for autistic so it's not strongly recommended for all autistic kids, but wherever the epilepsy part is there, then means maybe the autism is secondary to secondary to the seizures problem, then we would strongly definitely try a keto diet, because in autism, the earlier you start, the better it is. Whatever therapies you want to start, because nothing seems to be working for autism. Okay. I mean, Ma'am, some children something works, some children something else Okay. works. So Okay, ma'am, you actually, have to try one more early. मैम वन मोर Yeah, I क्वेश्चन was मुझे पूछना था कि इज इट लाइक ना एवरी लाइक पर डे के मील्स टाइम टू टाइम ऐसे देना होता है कि 1 आवर में या 2 आवर्स में टाइम नहीं, शेड्यूल होता है? नहीं, कीटोजेनिक डाइट में क्या होता है, 4 मील्स रहेंगे समझो आपके दिन में, 4 मील्स, हम लोग वैसे भी 4 नहीं तो 5 मील्स ही खाते हैं ना बच्चे। यस। तो वो गैप शुड बी सेम इन कीटोजेनिक डाइट, सो दैट वे कीटोजेनिक डाइट इज मोर स्ट्रिक्ट, सो पीपल टेक इट सीरियसली, whereas in modified Atkins वो कैसे भी दिन में उतना खा सकता है, that's why it is easier, I am saying, for older children. ओके, थैंक यू मैम। ma'am, I was asking. Sneha is asking, if we see positive changes within 6 months, do we still continue the diet for 30 months or we can discontinue gradually? No, even if you see positive changes, आप ये डाइट को ऐसे नहीं समझना कि ये डाइट है, इट इज अनदर मेडिसिन ऐसा समझ लीजिए, बिकॉज वी आर चेंजिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ द ब्रेन, इट इज नॉट अ इजी थिंग टू डू, सो मेम्ब्रेन हैज टू स्टेबलाइज and it has to be stabilized for a long time. जैसे कि हम लोग दवाई देते हैं, दवाई से ठीक हो जाते हैं मिर्गी, तो we still continue for 2 to 3 years, means 2 years after seizure control. Similarly, diet is also like that. हाँ, लेकिन धीरे धीरे उसका रेशो कम कर सकते हैं। मैंने हम लोगों ने देखा है कि पहले कीटोसिस के लिए इतना कार्बोहाइड्रेट रेस्ट्रिक्शन जरूरी है, लेकिन बाद में थोड़ा कम रेस्ट्रिक्ट किया, मैंने कार्बोहाइड्रेट थोड़ा और ज्यादा दिया उसको, वो भी विथ
your dietitian or your whoever nutritionist is doing the diet, you have to ask them, and धीरे धीरे वो कार्बोहाइड्रेट कम करके भी उतना ही कीटोसिस आता है. So it's not required to do that higher ratio. So we might be able to adjust the ratio, but it will not be stopped very early. क्योंकि फिर से आएंगे तो फिर से करना पड़ेगा ना. Hello. Ma'am, and what are the foods Can I to talk? avoid? What are the You foods have to to avoid? 100% see ये switch कैसा है. अगर शुगर रहेगा, कार्बोहाइड्रेट्स रहेंगे, तो हम लोग फैट बर्न कर ही नहीं सकते. वो एक स्विच है. वो स्विच होने के लिए जरूरी है कि पूरा शुगर, हनी, जैगरी, ब्रेड, bread नहीं, bread you without sugar we can have bread, but in modified Atkins at least, but in ketogenic we are not asking them to take bread, because here generally we ask them to take different things, but in modified Atkins we do allow bread, but no cakes, no biscuits, no other मिठाइयाँ वगैरह पूरी टोटली बंद हो जाएंगी. राइस भी पूरा बंद हो जाता है दोनों डाइट में. लेकिन कभी कभी इन मॉडिफाइड कीटोन्स व्हेन लिटिल स्टेबलाइज हो जाता है, तो कभी तो हम लोग टुवर्ड्स द एंड वी अलाउ राइस. Hello. Okay. Can I talk? And Can I ask you a yeah, question? sure. Yeah, sure. Hello. हेलो. Yes, I am Naina Duru. My son Saurabh Duru suffers from epilepsy. Yeah. He's 30 years old. And it is quite in control, but today only actually he got a very small attack after a long time. Oh God. But I think now that you said that not to eat banana, he had a banana I think in the morning. Is it that bananas should not be eaten? In banana is high carbohydrate, no? So It should be avoided. एक कदाचित कावळा बसला फांदी तुटली असं असू शकतं. हे banana I won't be able to comment on a single episode. No, I'm just saying, means otherwise he takes a high protein diet. Means we have eggs and this usually eggs he has every day for breakfast. But today only he didn't eat eggs. Okay. Maybe he should do low glycemic index kind of thing. Is he overweight? We are eating lot of meat. Every day he has either chicken or fish or and eggs also we include. But is he overweight or? No. He is perfect. He is perfect. Yeah. Okay. But other thing is that rice, so he doesn't like, so he doesn't eat. So that is good. And bread he likes, so he that we can calculate, madam. It is. It has to be on individual basis. Yeah. Chapati is fine. Yeah, but chapati also we have to add soya and all and give. So it should be easy because he's not eating rice and all. So just little changes करके देख सकते हैं. I mean, I don't know if he's completely controlled. So maybe low glycemic index, which gives little bit. Chicken diet he has regular. Yeah, but please do the as I said, the blood things should be monitored, because otherwise people take and kidney functions and all has to be monitored. Whatever diet he's taking. Because see, these are though we are talking about normal foods, right? I am not talking about some outside food, like bread, mutton, chicken, this thing, cheese, paneer, soya atta, all these fruits, vegetables, nuts. Okay. Nuts and all. Fat के लिए हम लोग fat के लिए तेल घी, lot of it. Then cream, Amul cream, then butter. So all these things are normal food, right? Yeah. But still it is not a normal diet. Please remember. So you have to be under medical supervision if you take any of these diets, because you have to see what is his kidney function, what is his liver function. It should not be that we miss out and एक ठीक करने जाते हैं और दूसरा बीमारी. His doctor is taking his parameters once in a year. Okay. Hello, madam. Hello, ma'am. Hello. Who's it? मयुरी देशमुख आहे. माझी मुलगी ना आता 6 वर्षाची आहे. ती छोटी होती ना, म्हणजे त्यावेळेस तिला फिट्स यायची. आता तिला फिट्स अजिबात येत नाहीये आणि तिला ऑटिस्टिक सांगितलंय. तर आपण करू शकतो. तिला काय सांगितलंय?
ऑटिझम हा ऑटिझम. हा तर आपण म्हणजे आता काय करू शकतो त्याच्यासाठी, आणि परत तिला इन फ्युचर कधी फिट्स येऊ शकते का? ते कोणी नाही सांगू शकत की फिट येऊ शकेल का नाही येऊ शकत. म्हणजे दॅट इज लाईक, पण आली आहे आणि 6 वर्षाची आहे तर तुम्ही न्यूरोलॉजिस्टना विचारा काय केलं पाहिजे. कारण जनरली अर्लियर चिल्ड्रन विथ ऑटिझम गेट बेटर रिझल्ट. म्हणजे लवकर डाएट केलं तर जास्ती ऑटिझमला फरक होतो. कारण ऑटिझम मध्ये काय आहे, ऑलरेडी ब्रेन डेव्हलपमेंटचं केमिकल जे वायरिंग झालं ते ऑलरेडी झालं ना. मग त्याच्यानंतर किती फायदा होऊ शकतो आम्ही नाही म्हणत नाही, कारण कधी कधी मी नाही म्हटलं आणि एखादं मूल बरं पण होतं, म्हणजे ओल्डर चाइल्ड. पण असं आपण गॅरंटी नाही देऊ शकत की हे नक्की ऑटिझम क्युअर होत, कारण ऑटिझम खरंच कठीण आहे. सीजर्स तरी कंट्रोल होतात, पण ऑटिझम कंट्रोल करायला डिफिकल्ट पण होतात. काही लोक ह्याने होतात, काही लोक त्याने होतात बरे. सो कोणाला काय लागू पडेल नाही सांगू शकत. 6 वर्ष इज लिटिल बॉर्डर. तुम्हाला ट्राय करायचं तर 5-6 महिने ट्राय करू शकता तुम्ही. थँक्यू. Any long term effects in My life son is after asking that you. diet has been weaned off. Hello. My Ah. son. This is my son Saurabh. Hello. Hi Saurabh. Hi. He's asking. Ask. I'm asked. I want to ask that I can eat all this type of junk food, like junk foods, like anything, like Frankies and whatever, like whatsoever, like काय anything. मला कळलं नाही. What? Frankies. Junk food. is Junk like- food you can't eat in ketogenic diet. Or मैंने modified Atkins also you can't eat junk food. We allow you pizza made at home. अच्छा. म्हणजे त्याचा बेस आपल्याला करायला लागतो. Okay. जंक फूड येणारच नाही. एनिवे यू आर डुईंग व्हेरी गुड जिम अँड ऑल. वाय यू वॉन्ट टू इट जंक फूड? Chocolate. He is very fond of chocolate. किटो चॉकलेट करता येतात. किटो चॉकलेट मिळतात पण. अच्छा. म्हणजे डायबेटीसचे चॉकलेट. वी से अ चीट डे यू नो, वन्स अ वीक वगैरे. Yeah. Only that he is little ice cream or chocolate he likes. Otherwise he is okay. Maybe just, but if he Otherwise is doing it's low not- glycemic diet, then it is less restrictive that way. That's what I was saying. But the Thank you. ketosis is less than that, but we don't want it also, na, that much. So, chalega. He's controlled, no? Yeah. Ma'am, we Yeah. have another question. Is MCT equally effective to keto diet? Any long-term effect in life after diet has been weaned off? See, effective wise, I'm telling you, ketogenic diet is the most effective. उसके बाद में आता है modified Atkins. उसके बाद में आता है MCT diet. And then low glycemic diet is least effective. Means ketosis wise, they are less and less and less. So MCT, लेकिन MCT किसी को ketogenic diet tolerate नहीं होता है ना, उनको MCT diet हम लोग देते हैं. And some people just don't get ketosis with normal ketogenic diet. उनको हम लोग MCT. तो I think there is a metabolism, typical type of metabolism which is there where they have got better results with MCT. जिनको नहीं होता है, and the long term effects in life, so बहुत long term effects are not there. We don't give the diet for very long term unless GLUT1 deficiency is there, where it is lifelong. क्योंकि उनको ग्लूकोज ब्रेन में नहीं जा सकता है, ट्रांसपोर्ट डिफेक्ट है ना, तो उनको भी हम लोग ने ज्यादा, लेकिन थोड़ी सी मे बी देर इज अ लेस लीनियर ग्रोथ थोड़ी है. देन दे हैव रिपोर्ट्स दैट your cardiac 1 or 2 patients, so we keep monitoring all that. Kidney stones we have seen, but otherwise mostly our patients who got, we've not had, but we have seen from 97. अभी उनको 60 बरस में problem हो जाएगा कि I don't know whether I'll be there at that time. Correct. Yeah, ma'am, and in autism spectrum disorder, most of the dietitian or pediatrician says to put the child off the sugar. And why is that? Why is that?
No. That, see, there are 3 theories for autism, 3 therapies for autism. One, they have tried gluten-free, casein-free diet. Usme we do not stop sugar at all. That is, they think that it is because of gluten in peptide leak. तो gluten और केसिन लीक होता है और उसके कारण ऑटिज्म होता है, ऐसे बिलीफ है. नथिंग इज प्रूवन. अभी तक ऑटिज्म का कुछ प्रूव ही नहीं हुआ करके ही वेरियस थेरेपीज आर देयर. सी, इफ इट वाज प्रूवन वी वुड हैव वन आंसर. नो, ऐसा नहीं है. किसी को पता नहीं है किसका डाइट किससे अच्छा हो जाएगा. तो ग्लूटेन फ्री, केसिन फ्री में शुगर नॉट अलाउड, ऐसा कुछ नहीं है. अगर सेकेंडरी एपिलेप्सी से सेकेंडरी ऑटिज्म है तो वी आर डूइंग कीटोजेनिक, देयर शुगर इज नॉट अलाउड. बाकी के लोगों को, एंड सम पीपल कंफ्यूज ADHD में शुगर माने रिफाइंड शुगर, refined food only is not allowed. So some people, because ADHD and autism is overlapping sometimes, and people cannot diagnose ADHD and autism. In that case they get confused whether it is ADHD, and ADHD में तो all refined means मैदा, cakes, ऐसे सब stop करना है ना, sugar, good, everything. So for them, yes. So I think there is a confusion in many doctor communities also, who are not aware of ketogenic and all, that ADHD and autism, it's little sometimes tricky to diagnose. So ADHD में sugar is to be stopped, ketogenic में sugar is to be stopped, whereas in GFCF we don't stop. Okay. We don't give excess. We should not give excess to anybody. That is for all children. Yeah. So there's one more question. If the child has epilepsy, what eating, like what food we should avoid or we should give to the child? In general, any specific food that we should avoid and anything that we should give regularly to the child? Sugar तो बोल दिया मैंने. Then rice, sugar, mud, cakes, anything which contains sugar like cakes, biscuits वगैरह सब off हो गए. Then we are not allowing them to have banana, chiku, सीताफल, custard apple. फिर vegetable में we don't allow them to have your sweet potato, yam, suran. वो नहीं allow करते because it contains high glycemic index foods. And means ready-made जो food जो मिलता है वो भी allowed नहीं है because we don't know what sugar it contains, so that is not allowed. And food which is typically given, like something like diet, would be some egg in the morning with some fruits, with some soya, if you want to give soya coffee or something, or tea, one fruit. Then mid morning lunch के लिए समझो non vegetarian है तो fish fry दे दिया, along with that salad दे दिया, नहीं तो पनीर फ्राइड दे दिया उसके. and it can be good, you know, you can have grilled and all. नहीं तो चिकन, बटर चिकन टाइप, means शाही फूड खाना चाहिए, बटर चिकन, मेथी मलाई, that type, along with if you are doing modified Atkins, a soya roti. सोया रोटी अच्छी बनती नहीं तो उसमें कुछ मिक्स करना पड़ता है, नहीं तो दाल के डोसे निकाल के उसके डोसा and all becomes nice. Then soup in the evening, and then night rice generally we avoid unless some children एकदम insist. Then dal we allow little bit, like it is calculated. Okay, ma'am. And when we give, there's a question Sneha has asked. Vitamin supplements, does some portion of carbohydrate get added with the supplement? Yes, that is there. In fact, earlier when we were doing diets, we were calculating, we were asking the pharmacies, इसमें कितना carbohydrate हमको बोल दो. So many times pharmacy used to come back. By then it used to be too late. Abroad they have that on this thing, but by the time we get that thing, it was too late. So I keep that much margin, you know, of carbohydrate. थोड़ा सा margin रखती हूँ क्योंकि 1 ग्राम से ज्यादा carbohydrate नहीं होता है किसी vitamins में. So that is allowed. But sugar coated pills वगैरह नहीं देते. And syrups नहीं देते. Syrups देंगे तो sugar free syrups देंगे. This is vitamins के लिए तो हो गया, लेकिन when child falls sick, you cannot give the syrups, no? So you have to give them tablets.
So you cannot even give, you ask me what to avoid. So syrupy supplements cannot be given. So we usually give tablets. Tablets. Ma'am, I had one question. As you said, like sugar coated pills. So does homeopathy also have to be avoided? Because I think those pills are like sugar coated or something. Yeah, what has happened, I've had this experience. See, because intractable epilepsy, जैसे मैंने ठीक नहीं होता है तो सब लोगों के पास जाएंगे ना, they will try different things. So sometimes they come doing homeopathy, and homeopathy में क्या होता है, they say कि you'll see result after 3 years, 4 years. So Okay. we don't know. So what I tell them, you go back to your homeopath, we will do the ketogenic diet. Tell him not to put that sugar. You see, there's something like they can give, means many of the homeopaths have agreed to do that they don't give the sugar part and rest whatever that watery thing they give. So, so long as they don't give carbohydrates, I've got nothing against any pathy. So long as they don't add sugar things to it, I'm fine with whatever. Of course, I tell them कि उसके side effects मुझे पता नहीं है. So that, so but I've worked with 2-3, you know, homeopaths who have given treatment along with the ketogenic diet. Okay. And that's okay. Ma'am, See, what is our aim? We want children to be fine, right? So long as, but you have to ask them not to give sugars. Yeah, ma'am, so there's this whole confusion when it comes to diet in autism. I'm not adding epilepsy, just autism, that there's gluten-free diet, there's ketogenic diet, and so many more. So the parents are always confused. Like I have a parent who's told by a doctor not to give milk to the child. Why per se doctor didn't tell them he's not lactose tolerant or something like that? Just no milk for the child, and child loves to drink milk. So in that case, what should one do? See, why that doctor has told not to give, I can tell you the theory. It is not a proven diet or anything. But the peptide leak is of 2. Means suppose हम लोग ने protein खा लिया, उसका protein gets converted to amino acid. Amino acid again are taken, means they are absorbed through the gut. They form chain. Any chain of amino acid is called peptide chain. Okay. So वो अच्छे order में तैयार हो जाएगी तो उसको न्यूरोपेप्टाइड बोलते हैं. So if it is in the correct order, means A के बाद में Z जाना चाहिए कि B जाना चाहिए. अमीनो एसिड के अलग अलग नाम होते हैं. मैंने हिस्टिडीन है, you know, valine है, ऐसे. तो every food has to become one single amino acid. Then that amino acid has to form a chain for a neuropeptide. वो neuropeptide brain में काम करेगी तो, like you don't have switches in the brain, right? Means मैं पूछूंगी आप ऐसा करते हो, उसको कुछ switch नहीं है, तो कुछ electronic discharge होता है कैल्शियम वगैरह channels का. I won't go into details. But that comes from food ना. chemical कहाँ से आता है? Food से आता है. तो वो neuropeptides जो होते हैं, तो उन्होंने they did lot of studies and they found there was a peptide leak, and in the urine of lot of autistic children they found gluten and gluteomorphins. Means they are in their own world, no? They are, it's type of नशा जैसा, अपने में ही रहते हैं. तो gluteomorphin and casomorphin, these were the things found in the children of autistic children, which were not found in other children. So that's why we stopped. We don't know why in some children it happens, why it has got nothing to do with lactose intolerance. So because this gluten, and this is a leak which happens, so we stop because we don't know why it is happening. So we stop all autistic children. If we want to try gluten-free, casein-free, we stop gluten and casein. And since it is not a proven diet, what we do is we first do that. It takes about 6 weeks for the milk, that thing to settle, and 3 months for the gluten. Gluten is what, that chikat part which is there in atta, na? That is the gluten. So it takes about 3-4 months. So by 4 months, if there is no
improvement, we stop the diet because we don't know. There is not Hmm. evidence based, अभी तक कुछ पता नहीं है. But we still do. Some children improve. जो improve होते हैं उनको continue करते. See, how will the evidence be done? Collected, yeah. Collected unless you do. So you do it, and see, parents don't have to become scientists, no? उनको अपना बच्चा ठीक करने की जरूरत है ना. So we tell them, you don't think about whether इससे काम हुआ कि उससे. If he is becoming better, you continue that diet. If he is not, I am not there to give diet. I have no this thing, happiness in stopping everybody's this, that, this thing. So if your child is benefiting, and who's the best judge? The mother knows. She says that the eye contact improved, this improved. If it is improving, yes. Sometimes they tell कि मैं सब कर रही हूँ, कुछ भी नहीं बदल रहा है. I tell them to stop keto also. It's not like that you go on doing whatever. And suppose you do also, they may not listen to you. It will be stupid on our part also to do that. And now there are good options to milk also, no, ma'am? I mean, Yeah, there are so many. See, soya milk. हमारे ज़माने में कुछ नहीं था when my child was born. अभी keto के लिए भी कितने options हो गए, because people are doing it for overweight. So now you are getting lot of options for keto. For milk also, there is soya milk is there. Then badam ka milk hai, almond milk is there, coconut milk is there. There are so many options available, and it is not difficult to do gluten-free, casein-free diet at all. So we tell them, you try. If it is better, you do it. If it is not better, see, I do not want to say it works. I do not want to say it doesn't work. Each individual metabolism different. Which works for whom we cannot tell, and we accept it. We are not saying it is helping, and the data we'll get. In fact, initially when we started keto also, the data was not there. In fact, we were teased in the hospital, keto karti hai, you know. And then now there are chapters and it is accepted, no? So how will the data be there? Once you do enough, only you get data. Completely, ma'am. And as you know, that my son has, got cured of epilepsy because of that. And thank you for your intervention there. So it really does work. There's no doubt. Thank you. And then why do we insist on sugar-free diet actually for autistic children? Because no, I just told you that, no, I didn't say for all autistic children we do. If you do ketogenic diet for autism, then you will stop the sugar. So in general, people say that, they might be getting confused in ADHD. Who people getting confused, I don't know. ADHD mein hum log sugar means any refined food we stop. But for autism, we are not stopping. My son has both he's in the autistic spectrum as well as he has attention deficit issues also. So for ADHD, they might have stopped that because all the direct refined sugars cause hyperactivity and all. For that, there are two things. One which calms the brain and one which excites the brain. Means neuronal jo hai. So jo sugar and all is excitatory. And it is required. Abhi sports ko jaoge to you will require it. So it's not that all sugar is bad. जब ये admit हो जाते हैं अपने को sugar and salt ही देते हैं. ऐसा नहीं है कि सबके लिए नहीं है. So we can give jaggery instead of no, jaggery and sugar is same for us. But if normal children, if you ask me that question, I would prefer jaggery because this is refined and jaggery is not refined. Jaggery has iron in addition to it, and our country as a rule is deficient in iron. So I would prefer jaggery if a normal child is there. If you are stopping sugar, then there is no point in giving jaggery. Like same, like if you stop milk for gluten-free, say, I'm not saying that it is evidence-based or whatever, but then you can start camel milk. Then that's another therapy altogether. There might be another explanation to it, but I am not knowing what the explanation is. Okay. Camel milk has been proven to be helpful, ma'am, because there's a lot of camel milk has been proven to be helpful. No, that people ask us, and there are some section which believes in camel milk,
I have not ever given camel milk. I don't know where it is available also. Maybe in Rajasthan. I don't know. Okay, And ma'am. see, I am telling you ki as much as we learn, as much as we understand, you understand that you know much less. Means the more I learn, the more I feel I don't know. So I don't know, maybe some years later somebody will come with camel. Let them do research. We have nothing against anybody. Let it be proven. That's why ketogenic, I can say yes, it works so much, it doesn't work so. Gluten free, casein free, I am openly telling you, we don't know, but if it works, wonderful. We have seen young children. Then we only start amongst ourselves, we discuss whether he was anyway going to outgrow into from autism to normal without the diet also. But are you going to take that chance as your child? Why you want to do research? If he's improving, continue the diet. Itna kya bada hai gluten free karne mein? That is what my attitude is, that don't give up. And what do you do to an autistic child? Don't give any hopes at all. That is not correct. That is not good. That is not a good human behavior also. So as a doctor, you have to be a good human first. Okay, ma'am, can we take the last question? Sure. There's a question in the chat box. Parent is asking if the child has CP, so is sugar, honey, and jaggery to be avoided for the child? No, CP without उसको फिट्स है कि नहीं है? उसको फिट्स है तो कीटोजेनिक करने वाले हैं तो ओनली यू हैव टू अवॉइड, अदरवाइज चिकन टेक सीपी भी है और फिट्स भी है. हाँ, तो आपको सिर्फ वो शुगर और हनी स्टॉप करके फायदा नहीं मिलने वाला है. वो आपको कीटोजेनिक डाइट करके उसमें तो शुगर निकालना पड़ेगा, फिर यू कैन नॉट गिव. बट कीटोजेनिक करने वाले हैं तो ही, हाँ, नहीं तो एज अ सीपी we do not stop everybody's sugar. Means सब पूरे जग का शुगर stop करना ऐसे कुछ, that's not the thing. That's a misconception, I think, ma'am. Yeah. People are saying कि सबका रोक दो, ऐसा नहीं है. जो डाइट पे है उनको ही नहीं लेना चाहिए. That is. जो डाइट पे नहीं है वो आराम से ले सकते हैं. All right. So, ma'am, Shobha ma'am, can I? Yeah, please. I think we have gone beyond time. एक question है, ma'am. वो आप आंसर कर दीजिए. after that we'll stop. Can I give fish oil? ये वाला? Yeah, हाँ जी. Yeah. हाँ, fish oil दे सकते हो. Fish oil and fish भी दे सकते हो क्योंकि they are good omega-3 fatty acids in it. As a rule, I'm telling we get lot of omega-6 with our diet. Means naturally मिलता है हम लोग को. Oil खाते हैं, बाकी कुछ भी खाते हैं, हम लोग को omega-6 मिल जाता है. omega-3 नहीं मिलता है. वो omega-3 वेजिटेरियंस को तो मिलने का बहुत डिफिकल्ट है. ओमेगा-3 नॉन वेजिटेरियन को फिश ऑयल इसमें से मिलता है. वेजिटेरियंस को लेना है तो आपको अरशी है, वॉलनट है, यू नो, ऑल दीज थिंग्स विल गिव यू ओमेगा-3. नट्स है, सीड्स है, उसमें से मिलता है. एंड वन थिंग डोंट फॉरगेट, mother's milk contains the best this DHA and all you hear. So outside DHA is much less effective than mother's milk ka DHA because it is bioavailable and it is a natural this thing. DHA, oleic acid, all these are omega-3 और omega-3 मिलना ही चाहिए हमको थोड़े पार्ट में. तो वो omega-3 आपको फिश ऑयल, वॉलनट्स, सीड्स ऐसे में मिलते हैं, you know, olive oil and all you can get. Okay, ma'am. So I think that was our last question. Thank you message है. Ruchi, just read the thank you message. Thank you. There's a thank you message here saying that he's a celebrity trainer. Wow. Your session was very knowledgeable. Thank you for such a wonderful session. Thank you so much for a patient hearing. Nice to interact with you all. Yeah. Ma'am, thank you. We are very glad that you were here and enlightened on this topic. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Bye. Thank you, ma'am. Shall I end? Yeah. Please. Thank you. Thank you so much.